So is the screen visible to all of you? Yes, sir. Okay. So today in last class in the MATLAB, we have studied about how to generate array and how to enter a matrix element in a matrix. Okay. So now today, along with this, we have studied about different kind of special matrix, that is I, ones and zero. Now there are some rules to use to determine a matrix through MATLAB, and the rules are like this. Just for a matrix. So just a minute. So for a matrix. So for a matrix, there are few rules, or you can say few methods to define a matrix. Okay. So first one is A colon comma n. A colon comma n. ठीक है, ये in this form refers to the element in all rows of column n matrix n of matrix A. Matrix A. That means it will show all the row elements of n column of matrix A. The command I will show you after writing all these conditions. Okay. Special conditions. Second one is similarly the vice versa of this command, like A n comma colon. It will refers columns of rows n of matrix A. Okay. Third one is A colon comma m colon n. M colon n. It will refers elements
in all rows between column M and N. That means, suppose I have a matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Okay. Now I have to view these columns 2 and 3. So through this, that is A column 2 column 3, through which I will see the elements of rows between column N and 3. N and 3 sorry 2 and 3 के बीच में जितना भी रो एलिमेंट्स है, the comment will show you. Now fourth number, सिमिलरली इसी का उल्टा होगा, M colon N comma colon. It will refer elements in all columns between rows M and N. M and N. उसी का उल्टा, जितना भी रो कॉलम एलिमेंट है, between that rows will be shown through this comment. Okay. Now fifth one is A. Sorry, first bracket. A M colon N comma P colon Q. Now this is a combination. That means it will refer all elements in rows M through M through N and column P through Q of a matrix. So these 5 comments you have to remember. Okay, this is the special case. In a matrix there are many elements. So if particular rows and particular columns I want to see, then these 5 comments will be used. So now I will go to the matrix window. So this is the matrix window. Now, first of all, I have to define the matrix. So let it be A equal to that is 1, 3, 5, 7, 9, 11 semicolon. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, again semicolon, 3, 6, 9, 12, 15, 18 semicolon, 4, 8, 12, 16, 20, 24 semicolon. Now 5, 10, 15, 20, 25, 30 bracket close. So this will gives me a matrix like this. ये मैट्रिक्स मुझे देगा MATLAB. ठीक है. Now I will apply the comments one by one. The very first comment is refers to the elements in all the rows of column N. ठीक है. So now let it be through B I will determine B equal to
A colon comma, let it be 3, that is 1, sorry, that is 1 2 3, so that is the third column, so 3, I will put 3. so थर्ड कॉलम का जितना भी रो एलिमेंट है वो दिखाएगा. सी 5 6 9 12 15, सो 5 6 9 12 15 ये जितना भी रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ये पांचों एलिमेंट, रो एलिमेंट ऑफ दिस कॉलम विल बी शोन. नाउ एनी अदर वन, that is 4, so it will show me the fourth column, that is 7 8 12 6 20. Okay, next option is or command is, I want to see the all column element of a particular row. Now C equal to A, now change the command, that is 3 comma colon. नाउ एंटर. 3 कॉमा कोलन मतलब थर्ड रो, 1 2 3, थर्ड रो का ऑल कॉलम एलिमेंट, दैट इज 3 6 9 12 15 18. इट विल शो द रिजल्ट. सो सी 3 6 9 12 13 and 18. so through this I will see the all column element of a particular row. ठीक है. नेक्स्ट इज कोलोन एम सेमीकोलन एन. ओके, सो एक तुम्हारा इन बिटवीन टर्म, जस्ट अ मिनट, सपोज you want to see the column, row element of column 4th to 6th. Now what will be the command, that is D equal to A. You want to see the row element, so जो एलिमेंट तुम देखोगे रो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कमेंट है, वो कमेंट लिखने का डिवीजन ये है, दैट इज ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल नेम व्हिच इज द मैट्रिक्स. नाउ रो कॉलम, और रिमेंबर दिस A R comma C. So you want to see the row. So if you want to see the particular row element, जो एलिमेंट तुम देखना चाहते हो, ठीक है, जो एलिमेंट तुम देखना चाहते हो उसके बदले कोलन बिठाओ, और इन बिटवीन जो एलिमेंट, जितना नंबर कॉलम में वो एलिमेंट देखना चाहते हो वहां पे नंबर बिठाओ. ओके, सो इन दिस केस सपोज कोई भी एक कॉलम, कौन सा रो तुम लोग देखना चाहोगे? कौन सा रो तुम लोग देखना चाहो? सपोज रो 2 to 5th रो, दैट इज कॉलम 2 to 5th रो, दैट इज यहां से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहां में जितना भी रो एलिमेंट है आई वांट टू सी दिस. सो कोलोन कॉमा 2 to 5th. नाउ सी 3 5 7, दैट इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ये फिफ्थ तुम्हारा रो एलिमेंट्स दिखाएगा 2 to 5 कॉलम, दैट इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ये इस कॉलम का रेंज है 2 to 5, ठीक है, और ये है रो एलिमेंट. तुम जितना भी रो एलिमेंट देखना चाहते हो उसी का ऑपोजिट ले लो अब, दैट इज लेट इट बी another matrix E. So देखो क्या हुआ, 2 3 4 5 सेकेंड, 2 3 4 5, 2 to 5, सेकेंड टू फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ये तुम्हारा जितना भी कॉलम एलिमेंट है वो दिखाएगा इस रो के द्वारा. ठीक है, सो नेक्स्ट इज
नाउ मेरा रो भी लिमिटेड है एंड कॉलम भी लिमिटेड है कि मैं देखूंगा तुम्हारा सपोज ये एलिमेंट 6, 8, 9 एंड 12, 6, 8, 9, 12. So how many columns are there? कितना नंबर का कॉलम है? 1, 2, 3, 4. 3 to 4 and row is 2 and 3. So now 2 and 3 and column is 3 and 4. So 3 column 4. Let it another matrix. F. See 6, 8, 9, 12. So 6, 8, 9, 12. So these comments will help you to sort or to find a particular element from a particular matrix because ये मैट्रिक्स ह्यूज होता है m क्रॉस n. मेरा सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये 100 क्रॉस 120 हो सकता है, 120 क्रॉस 350 हो सकता है, ठीक है. सो नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ नंबर फ्रॉम बाय सीइंग एंटायर मैट्रिक्स के हर बार मुझे मैट्रिक्स को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा. इफ यू नो द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम देन यू कैन फाइंड इजीली द पर्टिकुलर वैल्यू. नाउ पर्टिकुलर वैल्यू मुझे देखना है, ठीक है. उसको मैं कैसे देखूंगा? सपोज पर्टिकुलर वैल्यू, यहां पे कोई भी एक वैल्यू ले लो, एनी वन. बोलो कौन सा वैल्यू चूज करना है? वैल्यू बोलो, ठीक है. यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज आर देयर. सो टेल मी एनी वैल्यूज यू वांट टू सी. टेल मी. Any value which you want to see. $25. 25. Okay, so 25 I have to find out the number of which number of rows and in which number of columns the 25 is situated. So suppose 25 is there, ठीक है. तो इसका रो नंबर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5. फिफ्थ नंबर रो का 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so number of columns number is 5 as well as row numbers is 5. So now let it be another matrix G. So row number is 5, column number is 5. So say 25. आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if यहाँ पे तुम्हारा मेन टारगेट क्या है? You have to know the number of rows or which in which number of rows the value is situated and in which number of columns the value is situated. These two things you have to know. Okay, and if you know these values, then obviously you can find out any number from a given matrix. Any number from any particular number from a given matrix. So that is the advantage of these comments. Okay. Now next is ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, ऑपरेशन एक एक करके मैं जाऊंगा. ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज वेरी फर्स्ट प्रिलिमिनरी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? Interchange, sir. Interchange in between Matrices. Row and column. that is row becomes column, column becomes row. Row. Okay. Yes, sir. So इसका कॉमेंट है, सपोज A matrix is given. A matrix is given. So if you will put A equal to A dash, that is dash. Dash will be the command for transpose of मैट्रिक्स. ओके, सो अब इसको चेक करते हैं. सेम मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है. नाउ ट्रांसपोज करना है. A इक्वल टू A डैश.
सी चेंज हुआ? Yes, sir. तो in very first example the given matrix is of 5 cross 6. Now after transposing the matrix becomes 6 cross 5. शुरू में कितना था? 6 रो था, 6 कॉलम था, 5 रो थे. Now it will become 5 columns and 6 rows. So rows become columns, columns becomes rows. ठीक है. एक नॉर्मल सिंपल एग्जांपल देते हैं. सपोज b इक्वल टू 1 2 3. ये है एक रो मैट्रिक्स, दैट इज रो मैट्रिक्स. नाउ b इक्वल टू b डैश, सो इट विल बिकम्स कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है. सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑपरेटर. सो दिस इज नोन एज, this dash is known as transpose operator. Okay, so we have to do the transpose of any kind of matrix using dash command. Very simple command. Okay, now matrix is a scalar or vector? Tell me, matrix is a scalar or vector? Tell me, matrix is a scalar or vector? Sir, vector, sir. Why? Why? How do you know that matrix is a scalar or vector? दो ऑप्शन है, ये स्केलर हो सकता है और वेक्टर हो सकता है. तूने वेक्टर कहा, इसका तो कोई रीजन होगा, कुछ दिमाग में तो आया होगा कि हाँ इसके वजह से मैट्रिक्स. हाँ सर. हाँ बोलो. हाँ सर, इसका रीजन तो होगा ही. क्या रीजन क्या है? मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 होगा सर, हाँ, तो वो वेक्टर होगा सर. अच्छा, have you know the singular and non-singular. have you know the basic definition of vector and scalar? Suppose I am giving a number 22. Is the number is scalar or vector? Sir, scalar. Why? Scalar. सर ये नंबर में है इसलिए इसको स्केलर है, और वेक्टर अगर रहता है तो वो शायद रो और कॉलम मान বোঝাচ্ছে না, তার জন্য এটা ভেক্টর. স্কেলার. That is a very basic thing is Sir, it has no direction. direction. স্যার এটা কোনো ডিরেকশন নেই. हाँ, तो 22 अगर हम 22 लिख रहे हैं, 22 लिख रहे हैं, दैट मीन्स 22 कोई डायरेक्शन नहीं है. मुझे पता नहीं है 22 का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है. दैट मीन्स एड्रेस. आई डोंट नो इन व्हिच पोजीशन 22 इज सिचुएटेड. नाउ इफ आई एम राइटिंग that is 1 2 3 4, this is a matrix. Now suppose I am taking 3. So 3 मतलब क्या है? Row 2 column 1. So it has a particular direction or address or position. So the number which has direction or the quantity which has direction, that is known as vector quantity. And the vector quantity also has its own address. Whenever or a scalar quantity is not having any address or position, or we can't
get the direction of a scalar quantity. So since each and every element of a particular matrix, that is 1 का एक particular address है, that is R1 C1, 2 का एक particular address है, that is R1 C2, 3 का एक particular address है R2 C1 and 4 का R2 C2. These are the direction, or you can say a position of the element. So since that each and every element has its own position, so I can say a matrix is a collection of vector element or vector values or vector quantity. So since matrix itself is a collection of vector quantity or vector elements, okay, or collection of position of the particular number or address of the particular number, so that I can say a matrix itself a vector quantity. यहाँ पे कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है. सो दैट्स व्हाई मैट्रिक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ठीक है, मैट्रिक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, सो स्केलर क्वांटिटी में वही सर जिसका जैसे कि जिसका सर ऑर्डर इक्वल नहीं होता, जैसे कि आई नॉट इक्वल टू जे जो होता है वही ना स्केलर क्वांटिटी सर. सिंपली तुम एक डेफिनेशन याद कर लो. स्केलर क्वांटिटी का कोई एड्रेस नहीं होता है, कोई पोजीशन नहीं होता है. 22 इसका कोई पोजीशन नहीं है, एड्रेस नहीं है, ये जस्ट अ नंबर है, डायरेक्शन नहीं है. ठीक है, मेरा ये जो क्लास है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम 11:30 AM to 12:30 PM. इस टाइम स्लॉट में अगर इसका पर्टिकुलर एड्रेस, द एड्रेस ऑफ द क्लास इज दिस टाइम स्लॉट एंड मंडे. ठीक है, सो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन पर्टिकुलर मैट्रिक्स. ओके, सो नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर एलिमेंट के साथ अगर वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे ऑलवेज वेक्टर निकलेगा. मैट्रिक्स से डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होता है. ठीक है, ठीक है सर. Yes. So dot product means dot product कहाँ पे होता है, कैसे होगा डॉट प्रोडक्ट? ठीक है, तुम एक काम करो, ये तुम लोग का असाइनमेंट ले लो. ठीक है, बेसिक टर्म्स. ये हो गया A1 मैट्रिक्स, ये हो गया B2 मैट्रिक्स, 5 6 7 8. सो इसका एक डॉट प्रोडक्ट निकालो, इसका एक क्रॉस प्रोडक्ट निकालो. देखोगे यू विल फाइंड द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज, सिंस मैट्रिक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट हैज सम पोजीशन एंड लेट इट बी द पोजीशन इज k. ठीक है, सो नाउ इफ वेक्टर क्वांटिटी, सो आई कैन राइट, सपोज नाउ आई हैव टू नो हाउ अ वेक्टर क्वांटिटी is represented. So this is we will know. So now the topic is vector. ठीक है, so vector quantity, suppose vector is v equal to is the collection of numbers, that is vector quantity 35 46 75 22 84 96 95. Okay, now it has some position, that is the first position, second position, third position, fourth position, fifth position, sixth and seventh position. Okay, now I have to find out the positions. So suppose I am going to switch matrix window, that is v equal to कौन सा नंबर था, दैट इज 35. जस्ट a minute. नंबर कौन सा था? नाउ आई विल पुट दैट नंबर 35 space 46 75
22, 84, 96 and 95. This is the vector element. Okay, it has its corresponding position. So now I have to choose any number from any position. Suppose 5. I have to choose the number 5. So इसका simple command है v ब्रैकेट के अंदर पोजीशन, दैट इज पोजीशन. जितना पोजीशन चाहिए वो पोजीशन हम लिखेंगे. सो सपोज यहाँ पे मैं 5th पोजीशन का एलिमेंट चूज करूंगा, 5th. सो 5th देखो 84, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th. 5th वाला पोजीशन में 84 का पोजीशन मुझे दे रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज I have to add the elements of two position. Suppose 5th और second position का मैं summation करूंगा. 5th और 7th position, that is 46 plus 84. So 130. So now 46 in which position? That is second position, plus 84 is in which position? 5th position. So 5th. So the answer will be 130. That is the position wise summation. Similarly, multiplication. V2 multiplied with V5. So 1864. That is the multiplication. Okay? Multiplication. So it will also give the vector form. So that is the way how you will operate on a vector like summation, multiplication, surplus or your division. Suppose V2 divided by V5. This will be given. Now V2 minus V5. So it will give you this 38. Okay, so this is the operation on vector. Okay, now similarly, since matrix is also a vector, okay, so I can choose the element of a matrix from its address. Okay, so now take the first matrix. पहले जो मैट्रिक्स मैंने चूज किया था, फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स. Okay, and you have to find out the position. So if you are going to find out the position, then suppose मैंने पहले जो एग्जांपल में दिया था, that is B equal to 5, 3. So 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5. A, 5, 3. So 15. Okay, 15. Now I have to multiply or doing any mathematical operation with the elements inside the matrix. Suppose I will multiply the element 6 with 20. Okay, 20 दोनों में है. So any 20. Suppose 6 with multiplied with this 20. So ये 6 का पोजीशन कहां पे है? 1, 2, 2, 3. So B equal to A 2, 3 multiplied with A. ये 20 का पोजीशन क्या है? 5, 4. So 5, 4. So now result will be 120. So through this, by applying vector concept, we can multiply or we can do any kind of operation with the elements inside the matrix. ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर हो उसका पोजीशन तुम्हें पता है. ठीक है, पोजीशन कैसे पता होगा? ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ द वैल्यू इन अ मैट्रिक्स. तुम जब स्टोर करोगे तभी उसका पोजीशन तुमको पता होगा. ठीक है, उस पोजीशन अगर पता होगा तो यू कैन डू एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन with the values of the matrix or with the elements inside the matrix.
Okay, now this is the basic operation with elements inside a matrix. Okay, now next is एडिंग एलिमेंट. सपोज यहां पे जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, यहां पे तुम एक एलिमेंट ऐड करोगे, एडिंग एन एलिमेंट टू अ मैट्रिक्स. सो इसको कैसे करोगे? एडिंग एलिमेंट इनसाइड द मैट्रिक्स. सो सपोज यू हैव टू एलिमेंट्स, ठीक है, इन द इनसाइड एनी काइंड ऑफ मैट्रिक्स by using the, एक कमेंट लिख रहा हूं, ठीक है, तो हेडिंग विल बी एडिंग elements to matrix. So suppose मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं E इक्वल टू 1 2 3 4. पहले ये एग्जांपल ले लेता हूं, बाद में मैं जो ए वाला मैट्रिक्स है उसके ऊपर ट्राई करूंगा, बिकॉज छोटा एग्जांपल से मैं अगर समझाऊंगा तो तुमको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा. ठीक है, सो इट विल गिव्स यू द E मैट्रिक्स लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ I have to add a row. ठीक है, यहां पे 2 रो है, r इक्वल टू 2. ठीक है, नाउ I have to add a row, that is r plus 1, that is row will become 3. So now E, that is 3 comma colon, ठीक है, equal to, I have to add the values, that is suppose 7 8 9 and 10. देखते हैं ये कमांड काम करेगा कि नहीं. ठीक है, सॉरी. सो देखते हैं ये कमांड काम करेगा कि नहीं. दैट इज E इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8. It will gives you this. Now you have to add, that is third row. कॉलम तुम चेंज नहीं करोगे, तो कॉमा कोलोन, ठीक है, इक्वल टू 7 8 9 10. सी ऐड हुआ. ऐड हुआ. यस सर. ओके, नाउ मैं क्या करूंगा, ये जो E है, ठीक है, इसका एक ट्रांसपोज लूंगा. कंडीशन चेक करूं, ठीक है, E इक्वल टू E ट्रांसपोज दिस वन. ओके, नाउ G इक्वल टू, दैट इज E स्पेस E ट्रांसपोज. देखते हैं, आई एम जस्ट चेकिंग. शायद रो कॉलम ऐसे होगा नहीं. ठीक है, सो सपोज B इक्वल टू E ट्रांसपोज. नाउ G इक्वल टू E B. सी यहां पे नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा रो और कॉलम जो इक्वल नहीं है. सो इसका कंडीशन क्या है, मेरा ये दिखाने का एक ही मकसद है, व्हेनेवर यू आर कंबाइनिंग एनी टू, यू आर गोइंग टू कंबाइन एनी टू मैट्रिक्सेस, देन इट्स रो और कॉलम, ठीक है, मस्ट बी इक्वल. दैट इज सपोज यहां पे E का रो है 3
and column have 4. Now I will add another column, that is 4 comma colon equal to 2580. So it will equal to 4. Seven, 8, 9 and E4 equal to 8899. So it will give you 4 cross 4 matrix. Okay. Now I will give B equal to E transpose. It will give this. Okay, row becomes column, column becomes row. Now combining these two matrices like G equal to E space B. See, just a minute. After using this, that is G equal to E space B, ठीक है, ये कॉमेंट यूज करके मैं क्या करता हूं, दो मैट्रिक्स को कंबाइन करता हूं, ठीक है. सो फॉर कंबाइनिंग द मैट्रिक्स, for combining any two matrix, the number of rows of the matrix must be equal, as well as the command is that is a variable name, that is a matrix, combined matrix name, variable name equal to first matrix name space second matrix name. So if E be the first matrix and B is the second matrix, then G, that is combined matrix. So G equal to third bracket E space B. It will gives you the combination of two matrices. Okay. नाउ मैं और एक चीज देखूंगा, यहाँ पे और एक चीज देखूंगा. मैंने तो वेक्टर का वैल्यू पुट किया हूं, ठीक है, वेक्टर का वैल्यू मैंने पुट करना सीख लिया, वेक्टर का वैल्यू से ऑपरेशन मैंने पुट करना सीख लिया, मैंने मैट्रिक्स का वैल्यू पुट करना सीख लिया, मैट्रिक्स के वैल्यू से ऑपरेशन करना भी सीख लिया हूं, ठीक है, एलिमेंट्स. नाउ वन मोर ऑपरेशन इज रिप्लेस एनी नंबर, ठीक है, विथ कमेंट्स, ठीक है. तो सपोज उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं ए मैट्रिक्स ले रहा हूं, ये ए मैट्रिक्स है. सपोज मैं ये 12 को मैं रिप्लेस करूंगा विथ नंबर 92. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड आउट द एलिमेंट्स and its position. So 12, this is the elements, this position is 1 2 3 1 2 3 4 R3 C4. So A 3 comma 4, so it will gives you 12. मैंने पहले 12 को निकाल दिया. Now I will replace this.
So A 3,4 इक्वल टू 95। सो देखो यहां पे क्या था, 12 था, 12 के बदले क्या हो गया 95। सो थ्रू दिस कमेंट I can replace or I can change any value of its particular position। ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज सर वैल्यू चेंज ही क्यों करना है। सपोज मैंने कहा कि रोल नंबर, तुम्हारे स्टूडेंट का जितना भी रोल नंबर है उसका मैट्रिक्स हिसाब से निकालो, ईयर वाइज रोल नंबर, दैट इज कॉलम 1 इज फर्स्ट ईयर, कॉलम 2 इज सेकेंड ईयर, कॉलम 3 इज थर्ड ईयर। ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में जितना भी रोल नंबर है वो रो वाइज आ जाएगा, रो हिसाब से आएगा, कॉलम वाइज आएगा, सेकेंड एंड थर्ड। सपोज कोई स्टूडेंट क्लास छोड़ दिया बीच में, सो दैट स्टूडेंट विल रिप्लेस बाय द न्यू वन। सो दैट for that operation I need this kind of comment or to replace any number, ठीक है, with another number, then I will use this comment। कोई भी नंबर उसके पोजीशन वाइज अगर चेंज करना है तो उस हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कमेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है। सो इसका सिंटैक्स क्या होगा, what will be the syntax? That is to replace any number at a particular position of a matrix। So syntax क्या होगा, syntax that is matrix name bracket number, rows number and column number, in which row and column you want to change, then new value। ठीक है, नया वैल्यू जो है उसको देना पड़ेगा। यहां पे क्या है, मैंने ए की लिया है, उसका नया वैल्यू दैट इज 3 and 4 क्या था, उसका पोजीशन क्या था 3 and 4। ठीक है। सो 3 and 4 में उसका पोजीशन 3, 4 में उसका नया वैल्यू 95। ओके। सो दिस वे आई कैन चूज द और आई कैन चेंज द वैल्यू। ओके। सपोज नाउ आई विल चेंज द एंटायर वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। सपोज ये नया मैट्रिक्स है तो ये ओवरराइट हो गया। नाउ आई विल चेंज द एंटायर वैल्यू 9, 95 एंड 12, 16। ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तुम लोग का असाइनमेंट है। ठीक है। कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना। ठीक है। इसका नया वैल्यू दैट इज 9, 95 एंड 12, 6, दैट इज चेंज द वैल्यू थ्रू कॉलम नंबर 3 to 4 एंड रो नंबर 3 to 4, 3, 4, 3, 4 रो कॉलम में इसका नया वैल्यू, कोई भी नया वैल्यू, ये तुम लोग का असाइनमेंट है। ओके। Next one is some built-in functions in matrix or arrays। Okay, built-in function। So पहला built-in function है length। So I have to know what is the length। So let it be length, length, length of the matrix 6, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, that is number of columns। ठीक है, that is the number element। ठीक है। सो मैट्रिक्स का तुम्हारा साइज, मैट्रिक्स का नंबर ऑफ लेंथ आई कांट फाइंड बिकॉज मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम होता है। ठीक है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक अ वेक्टर दैट इज 5, 4, 5, 6, 7, 8। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ डी 5। सो लेंथ जो होता है वो कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम 1, 2, 3, 4, 5।
और मैट्रिक्स में मैंने ये लेंथ रो एंड कॉलम वाइज होता है. सो लेंथ व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ इट इज फॉर एरे नॉट मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में क्या होगा? साइज, साइज, size of the particular matrix A. So what will be the size? That is 5,6. That is number of row is 5, number of column is 6. That is 5 cross 6. That will be the size of the matrix. So length and size दोनों का अंतर क्या है? Length always applied on the vector or array of a particular length is always applied to an array, whereas size will be applied on a matrix. ठीक है. सो ये हो गया लेंथ. लेंथ क्या करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स देता है, कोई भी वन क्वांटिटी, सिंगल वन डायमेंशन. साइज क्या होता है? दो डायमेंशन. दैट इज 5 and 6. नंबर ऑफ रोज इज 5, नंबर ऑफ कॉलम्स इज 6. फर्स्ट वन इज रोज, सेकंड वन इज 6. नेक्स्ट इज reshape. Okay, another comment, reshape. ये reshape. So reshape क्या होता है? Rearrange a matrix having R rows and C columns to M rows and N columns. ठीक है. That means अगर तुम्हारा एक मैट्रिक्स सपोज A इक्वल टू 5 क्रॉस 6 है, ठीक है, एंड आई हैव टू रीशेप इट लाइक ए कॉमा, इसको मैं 3 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करूंगा. सो 3, 2 रीशेप 3 number of elements, sorry number of elements, that is 6, 5. Okay, so reshape will be 6, 5. that is तुम्हारा entire matrix जो है R and C will be interchange. number of R becomes number of rows, number of C becomes number of R. so row number column हो गया, column number row हो गया. एलिमेंट्स अगर इंटरचेंज होता है, जो रो एलिमेंट बिकम्स कॉलम एलिमेंट एंड कॉलम एलिमेंट्स बिकम रो एलिमेंट्स, देन इट विल बी ट्रांसपोज. एंड इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स विल बी इंटरचेंज विथ ईच अदर, दैट इज पहला क्या था? 6 क्रॉस 5 था, अभी क्या हो गया? सॉरी, पहला क्या था? 5 क्रॉस 6 था, अब क्या हो गया? 6 क्रॉस 5 हो गया. सो नाउ दिस इज नोन एज रीशेप. दैट इज 1 2 3 4 5 3 4 6. देखो यहाँ पे रीशेप हुआ है, ठीक है. ये देखो, ये इसका एलिमेंट जो है यहाँ पे रीशेप हुआ है, ठीक है. सो नाउ दिस इज नोन एज रीशेप. ओके, सो दिस इज रीशेप. और रीशेप कैसे होता है? दैट इज पहले देखो 1 2 3 4 5 लिया है मैंने, रो का नंबर 6 लिया है, तो ये क्या करेगा? नेक्स्ट 3 को भी इंक्लूड कर देगा 5 के बाद. नेक्स्ट 3 के बाद क्या है? 4 6 7 8 10, उसके बाद 5 6. तो रीशेप कैसे होता है? ट्रांसपोज और रीशेप का डिफरेंस, ठीक है. सो रीशेप, सपोज ए मैट्रिक्स इज A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15. This is the matrix having 3 cross 5. Now I will reshape it. I will turn it into 5 cross 3. So 5 cross 3 मतलब A reshape A, that is 5, 3. So ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 5 हो जाएगा. दैट मीन्स A1 A6 A12 लेगा. उसके बाद क्या होगा? ये क्या, कौन सा प्रोसेस में? दिस वे एंड देन दिस वे, अगेन दिस वे, अगेन दिस वे. ठीक है. सो यहाँ पे देखो 3 हो गया. नाउ खाली स्पेस कितना रहा? 2. तो इस 2 में क्या रहेगा? नेक्स्ट कॉलम का
first two elements, that is A2 A7. Again यहाँ पे क्या होगा, A12 आ जाएगा, A12, next A3 A8 A13, A8 A13, next A4 A9, खाली क्या रहा, A14 A5 A10, 14 5 sorry 13 कहाँ गया, A8 A1 6 12 2 7, then sorry A11 A11 1 6 11, फिर आ गया A2 A7 12 3 3 3, A3 आ जाएगा यहाँ पे 12 के बाद, नेक्स्ट 12 के बाद 3 आ गया, नेक्स्ट 8 13 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 9 14 5 A10 एंड A15। सो ये हो गया रीशेप। देखो, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स विल बी इंटरचेंज। If the variable position will be interchanged, this is transpose. And if the number of rows and columns will be interchanged, that is 3 cross 5 becomes 5 cross 3, then it will become reshape. तुम्हारा ट्रांसपोज में क्या होता था? ट्रांसपोज में क्या होगा? ट्रांसपोज में क्या होगा? ये नॉट इक्वल टू ट्रांसपोज, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ ए। इसमें क्या होगा? This entire row column becomes row element 1 6 14. Again this one, ये क्या बन जाएगा? A2 A7 A12. So देखो and so on. So यहाँ पे क्या हो रहा है? पूरा सेट के सेट इधर जा रहा है। रो एलिमेंट्स बिकम कॉलम एलिमेंट्स एंड कॉलम एलिमेंट्स बिकम्स रो एलिमेंट्स, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? पोजीशन उसका चेंज हो रहा है। दैट इज 5 cross 3 becomes 3 cross 5 becomes 5 cross 3. Position wise each element will be shifted. ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा रीशेप एंड ट्रांसफॉर्म का अंतर। ठीक है। नेक्स्ट इज अनदर वन इज CLC. अनदर वन इज, सपोज मैं पहले देता हूं A, this is A. Now I will find the diagonal element. ठीक है। सो डायगोनल एलिमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए? सपोज आई विल गिव द डायगोनल एलिमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ मैट्रिक्स. सो सपोज डायग, दैट इज द स्मॉल डायग. सो थ्रू दिस आई विल पुट द डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स लाइक 1 2 3 4. Now enter. Sorry. Diag भी नहीं. B equal to B equal to, पहले मैं B मैट्रिक्स को डिफाइन कर देता हूँ. दैट इज 1 2 3 4. मैं एरर इसीलिए निकाल रहा हूं ताकि ये एरर मिस्टेक है. ठीक है। ये तुम लोग जब मैट्रिक्स इंप्लीमेंट करोगे, ये जनरल एरर है जो तुमसे हो सकता है. तो मैं एरर इसीलिए दिखा रहा हूं कि तुम्हें पता चले कि अगर मेरा कमेंट कहीं पे भी गलत हो गया, सो इट विल अफेक्ट द रिजल्ट. सो टू फाइंड आउट द डायगोनल एलिमेंट आई हैव टू फर्स्ट गिव द array, that is B 1 2 3 4. Now I will not want to show the result. So semicolon, next is I want to see diagonal element, that is C is diag B. Index 6 is matrix dimension. 4 और 3 है diag. ठीक है। Index 6 is matrix dimension. B
बी मैट्रिक्स मैंने लिया था ना कहीं पे, आई हैव टेकन बी मैट्रिक्स इन प्रीवियस कैलकुलेशन, हाँ इसीलिए ये नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आई एम टेकिंग अनदर मैट्रिक्स दैट इज एम। एम मैंने कहीं नहीं लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज सी इक्वल टू एम। एम मैट्रिक्स भी कहीं पे लिया हुआ है, प्रॉब्लम है। तुम्हारा अगर प्री डिफाइंड ऑलरेडी है मैट्रिक्स तो उसको पहले आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो सपोज आई एम टेकिंग v इक्वल टू 1 2 3, so it will give v 1 2 3. Now I am taking another matrix that is n equal to diag v. Index exists, that is also be taken. Seven, 4, 2 आ जाएगा, 1 2 3 will be in this format. v equal to 1 2 3. एक मिनट रुको, यहाँ पे ऑलरेडी ये मैंने लिया हुआ है प्री डिफाइंड, A matrix is taken equal to 1 2 3. Now I have to put diagonal element. Matrix dimension 3 cross 3. ओके, मैं इसको थोड़ा ये करके पकड़ता हूँ, 3 cross 3 डायगोनल वेक्टर 3 cross 3, ठीक है। दूसरा एक वेक्टर ही मैं इसको एलिमेंट्स देके ही पुट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now this will gives you matrix and I have to see the diagonal element. Okay, just a minute. Now by using diag command, the actually diag command will show you the diagonal element. So वेक्टर में ये काम नहीं कर रहा है अभी, ठीक है। उसको मैं रिजॉल्व करूंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं इसको रिजॉल्व कर ये दूंगा। एक्चुअली ये क्या होता है, डायग एलिमेंट दे के अगर तुम्हारे पास 3 एलिमेंट्स है तो तुम उसको रो एलिमेंट्स में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट से बिठा सकते हो। दैट इज 1 0 0 0 2 0 0 0 3 विल बी जनरेटेड। नेक्स्ट क्लास आई विल रिजॉल्व इट। नाउ मैं दूसरा प्रोसेस घुमा के प्रोसेस दिखा रहा हूं कि एक मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलरेडी दे दिया है 3 cross 3. नाउ आई वांट टू सी द डायगोनल एलिमेंट। ओके, सो सी व्हाट विल बी द डायगोनल एलिमेंट। Again this problem, d equal to diag मैट्रिक्स डायमेंशन। ओके, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट क्लास आई विल शो यू, आई विल रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम रिगार्डिंग डायग। ओके, सो टुडे अप टू दिस, any doubt from today's class? रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मुझे भी याद रहे। नेक्स्ट क्लास
diag command have to be resolved. Okay. So any queries from today's class? No, sir. Okay. So I'm going to stop the recording.